Now, let us see the methods of assessing tax. The first one is step system and the second one is slab system. Generally, we use the slab system. This is the format of calculation of taxable income and tax liability. Now, first, the total of all the 5 heads that comes to your gross total income, less your deduction, that is section 80C to 80U, whichever is applicable, that will come, and after that you will get the total taxable income. तो जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है वो ये टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर होती है. कैसे होती है वो यहाँ नीचे लिखा गया है. जस्ट सी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. First is you'll get normal tax, that is total tax. Total tax is the tax which is calculated as per the slab, which I am going to discuss in the next slide. तो टोटल टैक्स आपका कितना आ रहा है उसमें से लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A. अगर आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है तो आपको एक रिबेट मिलता है, प्लस सरचार्जेस अगर एप्लीकेबल है तो, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दैट इज 4%. So in सबका total will be your total tax liability that you have to pay. So इस हिसाब से tax liability को calculate किया जाता है. This is very very important. We calculate the taxable income. Total taxable income के ऊपर tax liability calculate होती है. First we calculate the tax as per the slab, less rebate if possible, plus surcharge if applicable, plus health and education cess that is 4%, वो तो रहेगा ही. That will comes to your total tax liability. Let us see the slabs, income tax slab in the next slide. Now let us see the income tax slabs for the financial year 2020 and 21 and assessment year 21 and 22. Now at present we are having two regime. One is old regime and the another one is new regime. Previously old regime of income tax slab ही चलता था. New regime तो अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है तभी आया, पहले ये नहीं था. पहले तो ओल्ड रेजिम ही चलता था. अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी. लेट अस सी द इनकम टैक्स स्लैब्स इन द ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम. जनरली ओल्ड रेजिम जो यूज्ड होता है वो तब यूज्ड होता है जब बंदे की इनकम ज्यादा होती है एंड उनको डिडक्शंस क्लेम करने हैं, उनको एग्जाम्पशंस लेना है, तो ओल्ड रेजिम इज एडवाइजेबल टू यूज. एंड न्यू रेजिम इज फॉर दोज हु आर नॉट हैविंग मोर इनकम, दे आर हैविंग नॉर्मल इनकम, नॉट मच इनकम, आई कैन से कम इनकम है. सो जिनको डिडक्शंस भी क्लेम नहीं करने और एग्जाम्पशंस भी नहीं लेने, तो उनके लिए न्यू रेजिम है. बट if you're having good income, you want deductions, then you have to follow old regime. Now let us see the income tax slab as per old and new regime. Now see here, I'll use this laser point. Income slabs, I have 3 columns. One is individual aged below 60 years, senior citizen aged 60 years and above but below 80 years, and super senior citizen aged 80 years and above. Now let us see इनको कैसे कैसे टैक्स लगता है. Up to 2,50,000 in the category of 60 years, it is nil. 2,50,000 to 3 lakh, 5% tax. 3 lakh to 5 lakh, 5% tax. In short, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स है. कितना है? 5%. 5 लाख 1 रुपी से लेके 10 लाख तक 20% टैक्स लगता है, और 10 लाख से अबाव जाती है इनकम तो 30% टैक्स लगता है. दिस इज फॉर द इंडिविजुअल अंडर द एज ग्रुप ऑफ 60 years एंड 60 years बिलो, 60 years से नीचे.
Now come to senior citizen, which is 60 years but below 80 years, up to 2,50,000 nil, no tax. 2,50,000 to 3,00,000 be nil, they will not get tax. उनको टैक्स नहीं लगेगा. 3,01,000 से लेके 5,00,000 तक 5% टैक्स. 5,01,000 से लेके 10,00,000 में 20% टैक्स एंड 10,00,000 एंड अबाव से लेके 30% टैक्स. अब जो सुपर सीनियर सिटीजन एज 80 इयर्स एंड अबाव, उनको 5,00,000 तक टैक्स ही नहीं लगता. यू कैन से 5,00,000 तक टैक्स ही नहीं है. 2,50,000, 3,00,000, 5,00,000 कहीं टैक्स ही नहीं लगता. उनको डायरेक्ट टैक्स लगता है फ्रॉम 5,00,000 to 10,00,000, that is 20%, and 10,00,000 and above 30%. So my dear students, this is old regime. ये ओल्ड रेजिम है जो पहले से चलता आ रहा है. ये सिस्टम है, मतलब इसमें भी चेंजेस आते हैं बट 2-3 साल से ये सेम है. बट फाइनेंशियल ईयर 2021 में ओल्ड रेजिम भी आया and new regime भी आया. तो old regime is for those who are having more income. They want deductions and exemptions. And new regime is for those who are having lower income and they don't want to claim deductions and exemptions. ज़्यादा income नहीं. तो अब new regime का slab देखते हैं. You can see. Now keep one thing in your mind. Whether the person is of 60 years, whether the person is below 60 years, whether he is 80 years or 80 years above. New regime में सबका इनकम टैक्स रेट का स्लैब सेम है. सारी कैटेगरीज का टैक्स रेट सेम है, चाहे वो 60 इयर्स बिलो हो, 60 इयर्स ऊपर हो, 80 इयर्स ऊपर हो, सबके लिए वो सेम है. सो जस्ट सी हियर, अप टू 2,50,000 इट इज निल. 2,50,000 ₹1 से लेके 5,00,000 तक 5% टैक्स है. रिबेट मिलेगा इफ योर इनकम इज लेस देन 5,00,000. 5,00,000 1 से लेके 7.5 लाख तक इनकम है तो टैक्स विल बी 10%. 7,50,000 to 10,00,000 है तो 15%. 10,01,000 रुपीज से लेकर 12,50,000 तक है तो 20%. 12,50,001 रुपीज से लेकर 15,00,000 तक है तो 25%. 15,00,000 एंड अबाव है तो 30%. सो दिस इज योर न्यू रेजिम, जिसमें इनकम स्लैब ज्यादा डिवाइड किए हैं और टैक्स के रेट भी ज्यादा डिवाइड किए हैं. ये क्यों किए हैं? जैसे जिनकी इनकम कम हो तो ऐसा नहीं है कि उनको टैक्स ज्यादा पे करना पड़े, तो इनकम वाइज रेट्स को डिवाइड किया है. तो जिनको डिडक्शंस एग्जाम्पशंस कुछ बेनिफिट नहीं लेना है, दे कैन गो फॉर दिस. नाउ यू जस्ट have read this note जो मैंने ऑलरेडी बता दी है कि इनकम टैक्स रेजिम इज सेम फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF up to 60 years, senior citizen and super senior citizen. So this is the difference between old regime and new regime. Now I would like to make you explain this income tax slab along with 2 to 3 examples in my next slide. Let us see some important points in connection to the tax liability. The first one is rebate under section 87E. Rebate is a deduction, or you can say rebate is an benefit which is allowed only to individual taxpayer, and it is allowed in that case when the income of the individual taxpayer is less than or equal to 5 lakh. Then only that person is eligible for this rebate under section 87A, and this rebate is applicable for both the regime, old and new regime. Now under this, how the rebate is being calculated? Rebate is calculated like 100% of the total tax. जो भी total tax आया होगा उसका 100% और 12,500 whichever is less, वो rebate मिलेगा. क्या मिलेगा? Rebate. So that rebate is a benefit which an individual taxpayer will get. For example, the total tax comes to 13,000 rupees.
सो 13,000 का 100% लोगे तो 13,000 आएगा. सो 13,000 और 12,500 विच एवर इज लेस. तो लेस कितना हुआ? 12,500. सो 12,500 का रिबेट मिल गया. So this rebate is applicable only to individual taxpayers having income less than or equal to 5 lakh. Next, surcharge. Surcharge is applicable as per different tax rates in all the categories which are mentioned below. So now, below nahi, above. One important thing, rebate is a benefit. It is a deduction. बट सरचार्ज इज एन एडिशन, मतलब ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. ठीक है. सो अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 50 लाख रुपीज बट इट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो 10% ऑफ द इनकम टैक्स का सरचार्ज आपको एप्लीकेबल होगा. फर्स्ट. सेकेंड, if the total income exceed rupees 1 crore but does not exceed 2 crore, in that case 15% of the total income will be your surcharge. Third, if the total income exceed 2 crores but does not exceed 5 crore, then 25% of the income tax will be your surcharge. Fourth, if your total income exceed 5 crore को क्रॉस कर गई, then 35% of the income tax will be your surcharge. तो ये surcharge आपके टैक्स के अंदर ऐड हो जाएगा और आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है दैट विल बी इंक्रीज. तो ये सरचार्ज की कैटेगरीज हैं, वो आपको याद रखनी है. दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ एमसीक्यू. लास्ट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विच इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी. सबको पे करना पड़ता है. दैट इज एडेड एट 4% ऑफ इनकम टैक्स, जिसका रेट है 4%. किसका 4%? जो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया होगा प्लस सरचार्ज. सरचार्ज है उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका 4%. और सरचार्ज नहीं है तो जो इनकम टैक्स का अमाउंट है उसका 4% विल बी योर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड 2 to 3 एग्जाम्पल्स विथ दिस ओल्ड टैक्स रेजिम. हम ओल्ड रेजिम से सॉल्व करेंगे कुछ 2 एग्जाम्पल्स. न्यू रेजिम से नहीं कर रहे हैं. ओल्ड आ जाएगा आपको तो अपने आप न्यू आ जाएगा. ठीक है. तो लेट अस सी कि करना कैसे है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ हियर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. Mr. Nimesh, age 55 years, has the following incomes. His detail of the taxable income are as under. Calculate income tax liability. क्या calculate करना है? Income tax liability. Now, the salary income is 6,32,000. Income from other sources is 25,000. Income from house property is 28,000. इतना आपको डेटा दिया है. Now what we are supposed to calculate? We have to calculate income tax liability. इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया. नाउ फर्स्ट, ग्रॉस टोटल इनकम. नाउ व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम मींस 5 हेड्स की इनकम. नाउ यहाँ 5 हेड्स कौन से हैं? सैलरी, अदर सोर्सेस, हाउस प्रॉपर्टी को आप प्लस कर दो. तो ग्रॉस टोटल इनकम जो मिलेगी आपको वो कितनी मिलेगी? 6,85,000. कितने मिलेगी? 6,85,000. लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U. क्वेश्चन में कोई डिडक्शन का मेंशन नहीं है तो डिडक्शन आपके नील आएंगे. इनकम आएगी, टोटल टैक्सेबल इनकम 6,85,000. कितनी आएगी? 6,85,000. तो जो आपका टैक्स कैलकुलेट होगा वो 6,85,000 पे कैलकुलेट होगा. कैसे? आगे बढ़ो. नाउ ये हमारा स्लैब है ओल्ड रेजिम के हिसाब से. दिस इज अ 55 ओल्ड
ईयर मेन, सो इनको कौन सी कैटेगरी लगेगी? 60 ईयर्स के नीचे. सो दिस इज द रूल. अप टू 2,50,000 it is nil. 2,51,000 rupees to 5,00,000 it is 5%. 5,01,000 rupees to 10,00,000 it is 20%. And above 10,00,000 it is 30%. So let us see कि हम कैसे कैलकुलेट करते. इट्स वेरी सिंपल. बंदे की टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आई थी? आई राइट डाउन हियर. 6, 8, 5, डबल, 000. इतनी उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम आई थी जिसके ऊपर हमको टैक्स कैलकुलेट करना है. तो इसमें 2.5 लाख तक तो टैक्स नहीं लगेगा. यू कैन से अप टू 2,50,000 नील, नो टैक्स. डन? समझ गए? अब आप लोग ध्यान से देखो. दिस इज 6,85,000. ये कौन सी कैटेगरी तक जा रहा है? देखो ये यहां तक जा रहा है. इट इज 6,85,000. इट इज कमिंग ईयर, मतलब उसको नील भी एप्लीकेबल होगा, उसको 5% भी एप्लीकेबल होगा और उसको 20% भी एप्लीकेबल होगा. यहां तक वो आ रहा है. तो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं. 6,85,000 में से 2.5 लाख तक तो उसको छूट मिल गई, तो इट विल बी नील. अब आगे बढ़ते. नेक्स्ट 2,50,000 टू 5,00,000 जिसमें टैक्स रेट है 5%. तो यस, मिस्टर निमेश इज गेटिंग इनटू दिस कैटेगरी. तो जो उसका 2,50,000 है रिमेनिंग, उस पे 5% टैक्स लगेगा. कितना टैक्स लगेगा? 5%. दैट कम्स टू 12,500. कितना हुआ? 12,500. स्टूडेंट्स, अगर आपने एक चीज देखी, उसकी इनकम थी 6,8,5,000. उसमें से 2,50,000 चला गया नील और 2,50,000 सेकेंड कैटेगरी में चला गया. तो 6,85,000 में से 5,00,000 तो निकल गया, तो बचा कितना? 1,85,000. तो वो 1,85,000 20% स्लैब के अंदर आता है. किस में आता है? 20% स्लैब. 5,00,000 टू 10,00,000 इनकम है 6,85,000, जो ये 20% कैटेगरी के अंदर आता है. तो कितना रिमेनिंग है? रिमेनिंग अमाउंट इज 1,85,000. कितना है? 1,85,000. तो 1,85,000 पे 20% टैक्स लगेगा. इट विल कम टू 37,000. एंड लास्ट कैटेगरी में डैश आया. वो कितना आया? एज पर द स्लैब 49,500. कितना आया? 49,500. आई वुड अगेन लाइक टू रिपीट इट. उसकी टैक्सेबल इनकम थी 6,85,000. उसमें से 2,50,000 तक नील. उसके बाद सेकेंड स्लैब में भी उसकी सैलरी आती है पूरी, तो दैट कम्स टू द डिफरेंस इज 2,50,000 जिसपे उसको 5% लगेगा. उसके बाद थर्ड स्लैब में भी थोड़ी सैलरी आ रही है. कितनी बचती है? 1,85,000 जिसपे उसको 20% टैक्स लगेगा. दैट कम्स टू 37,000. तो टोटल टैक्स कितना हुआ? 49,500. लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A. निमेश को रिबेट नहीं मिलेगा बिकॉज उसकी जो टोटल इनकम है वो 5,00,000 या 5,00,000 से कम नहीं है. रिबेट किनको मिलता है? जिनकी इनकम 5,00,000 या 5,00,000 से कम हो उनको. तो रिबेट के लिए 0 प्लस सरचार्ज. सरचार्ज भी उसको लगेगा नहीं. क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज सरचार्ज इज एप्लीकेबल फॉर द पर्सन जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर क्रॉस होगी. तो 50 लाख से ऊपर इसकी क्रॉस नहीं हो रही है, तो सरचार्ज इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, डन. फिर लास्ट में प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दैट इज 4% ऑफ द इनकम टैक्स. तो ये जो 49,500 है उसका 4% निकालो. तो उसका 4% विल कम टू 1980. So this, so add this, you will get the total tax liability of 51,480.
So in this way, the tax liability is being calculated. Let us see the next example. According to the old regime, Mrs. Ria, 45 years, total gross income is 6 lakh 50, and she has made an investment under section 80C of rupees 1 lakh 50. Compute the taxable liability for the assessment year 2021. Direct things are given. Gross income is 6 lakh 50 and उसकी जो investment है 80C में that is 1 lakh 50. So ये बहुत simple हो जाएगा यहाँ. You can see the format. Gross total income कितनी है? 6 lakh 50. Less deduction available under section 80C that comes to 1 lakh 50 given. So taxable income कितना आया? 5 lakh. So 5 lakh is the taxable income जिसके ऊपर tax liability calculate होगी. So कैसे calculate होगी? Same way में, ये 45 years है तो same tax slab calculate होगा nil, 5%, 20% and 30% according to the old regime. Now let us see कैसे करते हैं. Up to इसकी इनकम कितनी है? टोटल 5 लाख रुपीज ही है. कितनी है? 5 लाख. तो अप टू 2,50,000 इट विल बी नील. क्या होगी? नील. ठीक है. उसके बाद उसकी इनकम 5 लाख तक ही है तो इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ 2,50,000 टू 5 लाख. दैट्स इट. तो वो डिफरेंस कितना है? वो कैटेगरी में 2.5 लाख. तो 2.5 लाख का 5% कितना आएगा? 12,500. दैट्स इट. इसके आगे आपका स्लैब जाएगा नहीं बिकॉज उसकी इनकम कितनी है? 5 लाख. तो 5 लाख तक हमने कर दिया. 5 लाख में से 2.5 लाख तक उसको छूट है और जो रिमेनिंग 2.5 लाख है दैट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ 5%. सो 2,50,000 का 5% विल बी 12,500. द स्लैब इज 12,500. ठीक है. लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A. यस, यहां दिस गर्ल विल रिसीव द रिबेट. उसे रिबेट मिलेगा बिकॉज उसकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख और 5 लाख से कम है. कितनी है उसकी टोटल इनकम? 5 लाख है. तो रिबेट कब मिलता है? जब इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम हो तब मिलता है. और रिबेट का रूल क्या है? 100% ऑफ द टोटल टैक्स. 100% ऑफ द टोटल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस. ये उसका रूल है. तो यहां रूल देखो कैसे अप्लाई होगा. रूल अप्लाई होगा. टोटल टैक्स एज पर स्लैब 12,500 आया. यस. लेस रिबेट भी मिलेगा बिकॉज उसकी इनकम 5 लाख तक है. तो रिबेट कैसे मिलेगा? 100% ऑफ टोटल टैक्स मैंने बताया 12,500 है और 12,500 विच एवर इज लेस. तो लेस कितना आया? 12,500. तो टोटल टैक्स माइनस रिबेट. तो आपका जो टैक्स है वो कितना आ गया? नील हो गया. सरचार्ज तो आएगा नहीं. और लास्ट में ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%. बट 4% किसका करोगे? आपका टैक्स ही क्या हो गया है? नील. तो 4% भी आएगा नहीं. तो आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो क्या हो गई? नील हो गई. क्या हो गई? नील. सो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना रिबेट मिलता है अगर आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम हो. रूल है 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस. हाँ, लेस किया तो वो जो टैक्स है वो नील हो गया. इसीलिए 4% एजुकेशन सेस भी एप्लीकेबल नहीं हुआ. Okay. Now our next example and the last example. Komal is 50 years, has the following taxable income. You have to calculate the total tax liability over here. Business income is 55 lakh. Income from house property is 25 lakh. Income from other sources is 12 lakh.
deductions are 3 lakh. So let us see how this goes. देखो डिडक्शंस मतलब ऐसा नहीं है कि एटीसी का डिडक्शन है, डिडक्शन मतलब सारे डिडक्शंस मिला के एटीसी से लेके एटीयू तक 3 लाख है. तो नाउ 92 लाख, उसमें से लेस डिडक्शन 3 लाख, so the taxable income is 89 lakh. So 89 lakh is the taxable income on which the tax liability will be calculated. Now let us see how it will be calculated. देखो 89 लाख है, मतलब कोमल विल बी मतलब कोमल विल बी लाइबल टू पे 5% ऑल्सो, 20% ऑल्सो एंड 30% ऑफ द टैक्स, बिकॉज उसका जो इनकम है वो 10 लाख क्रॉस कर रहा है, तो उसे सारे टैक्स स्लैब लगेंगे. कैसे? देखो ये टैक्स स्लैब्स है. 2.5 लाख तक छूट है, 5 लाख तक 5% है, 10 लाख तक 20% एंड अबाउट 10 लाख इट इज 30%. सो कोमल का तो 89 लाख है, तो डेफिनेटली उसको सारे टैक्स स्लैब्स लगेंगे. नाउ लेट अस सी फ्रॉम 89 लाख स्टार्टिंग 2,50,000 is exempted, nil, उस पे no tax. Now her income comes in this category also, 2,50,000 to 5 lakh. So 2.5 लाख पे 5%, 12,500. देन नेक्स्ट स्लैब भी एप्लीकेबल है, तो इस पे 5 लाख है डिफरेंस, तो 5 लाख का 20% कितना हुआ? 1 लाख. 20%, तो दैट कम्स टू 1 लाख. ओके, नाउ आफ्टर दैट इट इज अबाउट 10 लाख. अब 10 लाख के ऊपर कितनी उसकी इनकम गई? नाउ 10 लाख के ऊपर कितनी गई अभी आप कैलकुलेट करो. 89 लाख है, 89 लाख में से 2,50,000 निकाल दो, माइनस कर दो, देन 2,50,000 माइनस कर दो, देन 5 लाख माइनस कर दो, तो बचेगा 79 लाख. So 79 lakh पे 30% will be calculated. 30% tax will be calculated, which will come to 23,70,000. Now, in this way, the tax is being calculated. समझे? सारी कैटेगरीज में आया एंड 30% पे कौन से अमाउंट पे टैक्स लगा? द लेफ्ट वन, दैट इज 79 लाख. नाउ द टोटल टैक्स, जो टोटल टैक्स आएगा वो इनका सबका टोटल कर दीजिए. That will be 24,82,500. Done. लेस रिबेट. रिबेट का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि रिबेट तो 5 लाख से कम इनकम वालों को मिलता है, 5 लाख या 5 लाख कम. प्लस सरचार्ज लगेगा. यहाँ क्या लगेगा? सरचार्ज. बिकॉज कोमल की जो इनकम है दैट इज एक्सीडिंग 50 लाख, 50 लाख से ऊपर जाता है तो सरचार्ज लगता ही लगता है. तो कोमल की इनकम तो 89 लाख थी, तो इट इज एक्सीडिंग 50 लाख, तो उसको सरचार्ज लगेगा. कितना परसेंट लगेगा? 10%. ये 10% कैसे लगेगा ये मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बताया. अब 10% किसका? टैक्स का. नाउ 24,82,500 का 10% काउंट करोगे तो इट विल कम टू 2,48,250. तो दिस इज द सरचार्ज अमाउंट विच विल बी एडेड. अब टैक्स कितना हुआ? 27,30,750. ओके, अब लास्ट में क्या प्लस करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दैट इज 4%. अब वो 4% किसका? टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज. टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज. यस, so it will be calculated on this. So 4% on 27,30,750. उसका 4% निकालो तो that will come to 1,09,230 रुपीज. एंड लास्ट में जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो इतनी आएगी, 28,39,980. माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया
एक चीज बहुत क्लियर है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। ये आपको तीनों एग्जाम्पल में समझ आ गया। कम इनकम तो कम टैक्स। नाउ here I end with the chapter number 1. I hope the whole chapter is clear to you through this video. In case you are having any doubts regarding this, you can contact me. Thank you so much, students. Thank you.